आई वॉज so shy and so uncomfortable around people because आप यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो या ऑडिशन कर रहे हो, आप वहाँ होते हो, बट कैमरा के पीछे काफ़ी लोग होते हैं, देर आर लाइट्स एंड स्टफ, एंड मुझे किसी भी चीज़ की आदत ही नहीं थी. यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज ऑन दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ वेर आई फील लाइक कि नहीं, मैं अपने ही जगह पर ऐसे खुला नहीं घूम सकती. वॉट आई पर्सनली फील इज दैट you know that pressure and that responsibility will increase as your number increases. एंड वो ऑलरेडी बहुत है और बहुत टाइम से ही है. हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री रूल भी चलता है बिकॉज डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है हर चीज़ को, ये सब चीज़ों को लेकर. यू नो, टाइम पे जाना, टाइम पे सो, टाइम पे उठो. एंड आई एम नॉट समबडी हु इज़ अ फैन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई एम अ शाहरुख फैन एंड आई एम अ करीना फैन. I am still not very comfortable and I still get very nervous before during that rolling and action ka time, but I would never say that, you know, I'm the best and I can play any role किसी दूसरे से सबसे अच्छा. कि सबको ही लगने लगा, अभी भी लगता है कि मैंने कभी एक्टिंग वगैरह तो करी नहीं है, मुझे इसी से फेम मिला है. There was a particular time where it did affect a lot, क्योंकि मुझे ये लगता था कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस. तो जब वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे बहुत हिट करती थी, जब मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे कि ये करती क्या है जो इसको लोग इतना फॉलो करते हैं, इसने किया ही क्या है. Hello and welcome to Let's Talk with Bollywood Bubble. We are here in conversation with someone who comes with a huge fan following, and I have to say this, I have just been getting so impressed with this actress because हमने उन्हें बचपन से देखा है टीवी पर, but last when I saw her on खतरों के खिलाड़ी, the way she took on every stunt, I was just speechless. We have with us today in conversation Jannat Zubair. Hi. Hello Jannat, how are you? I am great. What about you? How are you? Absolutely, yaar. I have to say this. I am so impressed with the way, you know, your journey has unfolded over all these years. I mean, oh my God. If I'm not wrong, 13 years, 14 years in the industry? This is my 15th run. 15th year in the industry. My God. If you look back at these, how does it feel? I mean, I am impressed myself, and I think it's just, I just feel so much happiness and I just feel so grateful. I've met so many people, I've traveled so much, I have इतना अच्छे काम का एक्सपीरियंस, यू नो, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं. आई जस्ट फील surreal. I think it's just amazing. I'm just 21 now, and to be able to say that it's my 15th year in the industry, it's a different kind of joy which, you know, I really can't explain, but I'm just very grateful. But you know, I want to know that when you started back, you were 6 years old if I'm not wrong. Yeah. How did all of that happen? Do you remember that? I don't really remember, I mean, everything, but I do remember some bits and parts of it. I remember going on auditions, I remember being camera shy, I remember being, I was so shy and so uncomfortable around people because आप यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो या ऑडिशन कर रहे हो, आप वहाँ होते हो, बट कैमरा के पीछे काफ़ी लोग होते हैं, देर आर लाइट्स एंड स्टफ, एंड मुझे किसी भी चीज़ की आदत ही नहीं थी. तो ये सारी चीज़ों से मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी. मुझे याद है डायलॉग्स याद कराते थे रेडी, और मैं जाके सबको देख के भूल जाती थी. नॉट बिकॉज मैं भूल जाती थी, बट बिकॉज मैं इतनी शाय होती थी कि इनके सामने कैसे करूँ मैं. So all of those things, they've happened in the past, but I am so glad उन सब चीज़ों के लिए भी. It is an amazing journey जो अभी हो रही है, लेकिन जो हो गई, जो struggle time था, जो मुझे अपना कैमरा फियर ओवरकम करना था, लोगों का फियर ओवरकम करना था जो कैमरा के पीछे खड़े होते हैं, उसको भी जो ओवरकम किया, आई थिंक इवन दैट वाज फैब. सो आई एम ओके विद दैट जर्नी ऑल्सो. But how was the first time on set? How was the first time on set? Oh, this I remember very well. I remember I was shooting for a show on Andy TV Imagine. Yeah. और मैं काफ़ी छोटी थी उसमें, और मुझे पता है कि यहाँ पर आपको पता है वो शूटिंग में लाइट्स होती हैं जिनका नाम होता है बेबी लाइट्स. हाँ. सो माई फर्स्ट डे ऑन सेट, एंड कैमरा के पीछे से किसी ने तो बोला कि बेबी की मुंडी काट, बिकॉज बेबी लाइट्स में वो थोड़ा कट वट करके, वो लाइट का उनका लैंग्वेज था बोलने का कि बेबी की मुंडी काट. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड. आई वाज लाइक शिट, बेबी की मुंडी काट, मतलब आई वाज द ओनली बेबी ऑन सेट. सो आई अज्यूम्ड वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी मुंडी काट.
बट देन बाद में मुझे बोला उन्होंने कि नहीं नहीं, ये बेबी ये लाइट का नाम होता है और हम उसको ऐसे कटर से ऐसे लाइट कट करते हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि वो लाइट की मुंडी काट, मतलब उसकी कटिंग करो. सो आई रिमेंबर ये मेरा फर्स्ट डे था और सब बहुत ज़्यादा हंसे थे मुझ पर और इसलिए मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है. But उसके बाद probably once you became an actor and you got established, even as a child actor for that matter, do you remember that point or that particular incident where you realized that oh my god, I am famous? काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, तो इतना अच्छे से तो मुझे वो पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम नहीं याद होगा, बट आई रिमेंबर आई वाज शूटिंग फॉर फुलवा. Okay. तब शो चल रहा था और उसके बीच में ही मुझे किसी NGO रिलेटेड एसोसिएशन के लिए एसएल वर्ल्ड जाना था. और मैं पहले भी एसएल वर्ल्ड जा चुकी थी, बट जब मैं ड्यूरिंग फुलवा एसएल वर्ल्ड गई तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी. मुझे से साइड में खड़ा कर दिया गया था बिकॉज everybody got crazy and they were like, and especially the mothers and nannies and Right. daddies, because they used to love watching the show. और मुझे आके बोल रहा है आप रोते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, ये भी रोती है, ये वो. Then I remember a couple coming to me and they were like, hey, we love you so much, कि हमारी भी बेटी हुई और हमने उनका नाम भी फुलवा रखा. Wow. I was so touched. I was so little and I was like, oh my god, what is just happening? So it was just so much love and support. It was so difficult to consume all of it at once. और मैं राइड्स वाइड्स नहीं कर पा रही थी, मैं ऐसे खड़ी हो गई थी साइड, मुझे खड़ा कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ओ माई गॉड, मतलब आई थिंक अभी वो टाइम आ गया जब मैं ऐसे पब्लिक प्लेस पे ऐसी कोई जगह पर इतना इजीली नहीं जा सकती शायद. सो आई थिंक हाँ वो टाइम But it was fascinating. इट वाज अमेजिंग. लाइक आज भी ऐसा कभी भी मैं अभी भी मॉल जाती हूँ, मैं वहीं पे शॉप करती हूँ. कितनी सारी ऐसे विंडो शॉपिंग काफ़ी सारी जगहें हैं लिंकिंग रोड पे, वो तभी मैं गाड़ी में बैठ के शॉपिंग करती हूँ, मुझे मज़ा आता है. आई जस्ट डोंट वांट टू लूज ऑन दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ where I feel like कि नहीं मैं अपने ही जगह पर ऐसे खुला नहीं घूम सकती, because I think there is no harm in it. I mean, all they ask for a selfie or Right. they come and compliment you, or they just come and say that, oh, we really like you, or are you Jannat? Are you shopping here? Are you crazy? With that, I want to come to this 46.5 million followers that you have today on social media. Like, how does it feel, knowing that, oh my god, you have such a huge fan base? It's crazy, I feel. Even I feel it's crazy, because I really don't know why and how. I mean, everything and every struggle that we did was entirely for acting. I played so many roles. I used to go to shoots and work 12 hours every day. I used to love my job, like absolutely love doing what I did. But this part, we never really planned it. We never really thought this would happen because it was all so new. And when it happened, I was like, what is happening? Every day I used to wake up and see the numbers and I was like, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये कैसे हो रहा है? और ये क्यों हो रहा है? मतलब all of a sudden what is happening? And I think for the longest time I also thought that okay अभी हो रहा है, बस I think 2-4 दिन का होगा, 1 हफ्ते का होगा, मतलब ये रुक जाएगा. I never knew that वो grow होते इतना हो जाएगा. बट आई जस्ट फील कि वो बोलते हैं ना, वो जो अनप्लान चीज़ें होती हैं, जब आप प्लान ही नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली आप जस्ट गो विद द फ्लो होते हो और वो चीज़ें हो जाती हैं. सो आई थिंक ये इंस्टाग्राम और या तो ये पूरे सोशल मीडिया का जो इतना प्यार मिला है, आई थिंक इट जस्ट हैपेंड, इट वाज वेरी अनप्लान्ड एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. आई जस्ट केप्ट बीइंग माई सेल्फ एंड इट हैपेंड. But are there times when you probably feel the pressure of living up to this huge number of fan base that you have? Yes, it is always there. But what I personally feel is that that pressure and that responsibility will increase as your number increases. Right. And वो already बहुत है और बहुत टाइम से ही है. जब छोटा नंबर था तभी भी होता था, बिकॉज चाहे 1 मिलियन हो चाहे 40 मिलियन हो, लोग तो 1 मिलियन में भी बहुत ही होते हैं. और मैं नहीं चाहती कि कोई एक या कोई 2 को भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए, उनको लगे कि अरे मैं किसको ही फॉलो कर रहा हूँ और क्यों ही कर रहा हूँ. तो वो चीज़ का हमेशा कॉशियस रहना इज़ इम्पॉर्टेंट. बट बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रेशर लेती हूँ मैं इस चीज़ का कि मुझे अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना है या अपने आप को इस तरह कैरी करना है, बिकॉज फिर वो मैं होंगी ही नहीं. Correct. They're following me for who I am. They're following Jannat, right? So I have to be Jannat.
and put myself across on every social media platform as myself and not as somebody who I think they should be following. Correct. So that would be a little unfair for everybody who thinks that कि अरे मैं तो जन्नत का लाइफस्टाइल देख रहा हूँ या देख रही हूँ या उसका स्टाइलिंग देख रही हूँ. So I prefer to be myself, but yeah, rightly said, the pressure is always there. बट उसको मतलब एक हद तक ही रहता है, बाकी ऐसा नहीं होता है कि मैं उस प्रेशर को लेकर अपने लाइफस्टाइल में या अपने खुद के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाती हूँ. I want to understand that, you know, as a child who's probably 8-year-old, 9-year-old on a set, understanding the process, you know, that understanding of a character कि अच्छा मुझे ये role play करना है, there is a certain way I'm supposed to talk, there is a certain mood I'm supposed to be in. How did that understanding come about for you? यू नो आई थिंक वो अंदर अंदर बैठता रहा और वो एज ऐसी थी ना कि ऐसा लगता है कि बच्चा है कैसे समझेगा, लेकिन आई थिंक उस एज में ज़्यादा जल्दी आप ग्रास्प कर पाते हो चीज़ें. हाँ, तो मुझे कोई एक बार बोल देता था कि ऐसा करना है तो मुझे समझ आ जाता था कि अच्छा हाँ ऐसा करना है. मैं डायलॉग्स भी पढ़ती थी, मुझे याद हो जाते थे. आई थिंक वो दिमाग इतना शार्प होता है बचपन में, और अगर आपको पसंद भी है वो चीज़ जो आप कर रहे हो, curiosity and that fascination, I think so is what. Yeah, तो आई थिंक इट वाज ऑल वेरी स्मूथ. But were things, you know, at home, did things change at home after, you know, Jannat became an actor and Jannat famous हो गई तो family का treatment थोड़ा सा अलग, या तब भी डांट पड़ती थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, डांट तब भी पड़ती थी, डांट अब भी पड़ती है, और मुझे लगता है 10 साल बाद भी पड़ने वाली है. एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि हम जैसे थे हम आज भी वैसे ही हैं और हम आने वाले सालों में भी वैसे ही रहेंगे इंशाल्लाह. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, आई लाइक टू लिव just like any other girl of my age would, you know. I want to walk on the street, I want to go to a mall and shop for myself, and I just want to feel normal. तो अगर वो मेरे घर में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आई थिंक वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा. एंड आई एम वेरी श्योर कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज माई पेरेंट्स आर जो ना बचपन से सिर्फ एक ही एडवाइस दिया है कि जो भी आप काम कर रहे हो ये करो, बट ऑलवेज बी ग्राउंडेड, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ. बिकॉज ये सब जो है वो तो चुटकी में चला जाएगा अगर आपने अपने अंदर मैं और आई डिड दिस और आई एम दिस कर दिया तो मेरे घर में ऐसा माहौल कभी भी रहा नहीं है. हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री रूल भी चलता है, बिकॉज डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है हर चीज़ को, ये सब चीज़ों को लेकर, यू नो. टाइम पे जाना, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ये कहाँ पे जाना है. तो I love how supportive he is. He's like literally the wind beneath your wings. Absolutely. डैडी इज़ लाइक ही इज़ एन ऑलराउंडर, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, बीट सोने का उठने का टाइम से लेकर के बीट काम का कितना भी बड़ा कुछ भी हो. और यू नो इट्स जस्ट सो नाइस दैट यू हैव सच अ सपोर्टिव फैमिली कि मुझे कुछ भी कभी अकेले नहीं करना पड़ता. कभी मुझे ये नहीं लगता कि यार मैं लोनली हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं कैसे करूँगी, बिकॉज आई नो दैट आई ऑलवेज हैव माई पेरेंट्स, आई ऑलवेज हैव डैडी, स्पेशली बिकॉज वो हर चीज़ में इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बीट एनी थिंग. तो हमेशा वो सपोर्ट आई थिंक बहुत लोगों को नहीं मिलता है. एंड आई एम जस्ट सो लकी, आई फील वेरी लकी कि मुझे वो हमेशा से मिलता आया है. और ऐसा नहीं हुआ कि मैं बड़ी हो गई, बचपन में था तो जैसे जैसे आई ग्रू तो वो कम हो गया या उन्होंने स्टेप बैक कर लिया कि अच्छा अब कर लेगी. वो कभी ऐसा नहीं होता है. आज भी उनका उतना ही इनपुट है, आज भी वो उतने ही सपोर्टिव हैं जितने वो पहले थे. As a child, you know, when I was growing up, or probably anybody who grows up, हम लोग एक सपना देखते कि probably, you know, this is my favorite actor, or you know, I will, like, you know, in life I want to meet this person once, or anything like that. Were there dreams like these that, you know, Jannat also saw, and you know, for you probably you were in this industry, तो ऐसा कभी हुआ है कि you know you have a bucket list of actors that you know you really want to work with, or somebody you know you've grown up watching and you've always dreamt कि life में एक बार इनके साथ काम करना है मुझे? I think I don't have a list, and I'm not somebody who's a fan of a lot of people, but I am a Shah Rukh fan and I am a Kareena fan. Wow. And I think वही दोनों हो गए मेरे bucket list पर जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ या जिनको मैं मिलना चाहती हूँ. इतने सारे लोग हैं बॉलीवुड के जिनको मैं मिली हूँ, कई बार भी मिली हूँ, बट जो दो मेरे फेवरेट हैं मैं उन्हीं से नहीं मिली हूँ. तो ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं. करीना तो बहुत टाइम से है, and especially after Jab We Met, after I watched the film, I was like in awe of her, and I was so little and I was like, oh my god. But over these 15 years, you know, have you mastered the art of, or the craft of acting? Like today when you go on a set, it's very easy for you, can we say that? It is not, I'd not say it's easy. I'm still not very comfortable and I still get very nervous before during that rolling and action ka time. But
I know how much I've grown as an actor, but I would never say that I have mastered Okay. this part, and I think I will never be able to do that. You know, there's always a learning for an actor or for anybody in any field, be it any field. You get to learn so much every day from everyone, and you know, not just a particular set of people, but be it a spot dada, be it the makeup dada, hair didi, anybody. So I don't think कि कोई भी एकदम परफेक्ट और कोई भी एकदम मास्टर Right. होता है. हर कोई रोज़ाना कुछ सीखता है. तो मेरे लिए तो ये बोलना कि मैं मास्टर हूँ या फिर मैं परफेक्ट हो जाऊँगी आने वाले 5 साल में भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Okay. और मैं ऐसा चाहती भी नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसा कभी भी आए कि अब मैं इसमें परफेक्ट हो गई हूँ या मैं अब मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई हूँ. हाँ, एक सर्टन लेवल तक के मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आप मुझे कोई भी रोल दोगे, कितनी भी बड़ी लाइन दे दोगे, मैं वो कर लूँगी. But that is my faith in my art or in myself or my hard work. But I would never say that, you know, I'm the best and I can play any role किसी दूसरे से सबसे अच्छा. That I will leave it on to other people to say. Absolutely. But you've done films, you've done television. Yeah. However, you know, a lot of people today see you as a social media star. Now, for somebody like me, a performer is a performer. Okay, an actor is an actor. वो film हो, TV हो, social media हो. I have never had that distinction. But I want to know that, you know, when people tell you that, you know, you are a social media star, पहले तो how is a social media star any different? You're still calling that person a star. Yeah. So, you know, that makes a lot of sense. Not everybody in the acting field is called a star. Correct. But somebody who has a lot of followers or who gets a lot of likes on reels or whatsoever the person is posting, you do call that person a star. आप खुद ही स्टार बुला रहे हो सबसे पहले, और फिर आप खुद ही बाद में ट्रोल कर देते हो कि अरे ये तो ये कर रहा है, जबकि सब वो कर रहे हैं. I just don't understand why. I mean, what is the problem? But वो scrutiny तो is always there It's on always there. It social has always media. been there. But कहीं ना कहीं does that affect, you know, your decisions of posting something, or you know, does it hold you back from expressing an opinion at times? It does not. You know why? Because I know for a fact whatever I wear, no matter कितना अच्छा मैं फोटो पोस्ट कर दूँ, कितना कुछ भी अच्छा कर दूँ, उसमें भी उनको अपना कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी डालना ही है और वो डालेंगे ही. एंड आई एम स्पीकिंग दिस विद एक्सपीरियंस. आई हैव सीन एंड आई हैव रियलाइज्ड, अरे इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं गलत, लेकिन तब भी मुझे हेट मिल रहा है. तो उसमें आप ये सोच ही नहीं सकते कि अगर मैं ये ना करके ये करूँ तो शायद मुझे इसमें हेट ना मिले. ऐसा क्योंकि नहीं होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ. But it affects you, the hate that comes. The heat, there was a particular time where it did affect a lot, क्योंकि मुझे ये लगता था कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, what am I doing? I'm just minding my own business, putting up and making videos that I personally like putting. There are a lot of people who like posting such kind of stuff, and it's not just me. कितनी बड़ी कम्युनिटी है जो ये सब कर रही है. आज तो नॉर्मल जो अभी इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, सब मज़े के लिए करते ही है ना, तो उसमें दिक्कत क्या है. तो वो चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगी थी. एंड ऑल्सो व्हाट यू सेड बिफोर कि सबको ही लगने लगा, अभी भी लगता है कि मैंने कभी एक्टिंग वगैरह तो करी नहीं है, Right. मुझे इसी से फेम मिला है. तो जब वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे बहुत हिट करती थी, जब मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे कि ये करती क्या है जो इसको लोग इतना फॉलो करते हैं, इसने किया ही क्या है, बस 15 सेकंड की वीडियोस ही तो बनाती है. तो जब ये कोई बोलता था तो मुझे बहुत हिट होता था कि आपको क्या पता मैंने क्या किया है. Right. आपको ये 15 सेकंड दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने और मेरी फैमिली ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ किया है, और वो Absolutely. दिखने से पहले हमने कितना कुछ किया है वो आपको नहीं पता है. सो इट्स वेरी वेरी ईजी टू जज एनीबडी, और मे बी जस्ट बी यू नो कि आपने किया क्या है जो आपको इतना प्यार मिल रहा है, आपको तो नहीं पता. लेकिन आज तक मैंने कभी किसी भी कमेंट को रिप्लाई नहीं किया, मैंने कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली, ना मैंने बनाई जिसमें मैं बता रही हूँ कि देखो मैंने ये किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है. और अगर मैं ये सब चीज़ों पर ध्यान देने लग गई तो फिर तो मेरा हो गया. But how did you become thick skinned then उसके बाद कि यार मतलब ये hate, like when did it stop affecting you? See, it will never stop affecting you. Okay. No matter what, कोई भी कितना भी बोले कि इग्नोर करो, वही एक तरीका है, इग्नोर ही करती हूँ. एक पॉइंट पे तो कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दिए थे कि पढ़ो तो मतलब जितने अच्छे होते हैं वो तो आपको अच्छे लगते ही हैं, लेकिन उसमें एक भी नेगेटिव आता है ना तो आपको कहीं ना कहीं दिल दुख जाता है कि यार क्यों, क्योंकि वो नेगेटिविटी भी कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं होता है जिसमें आपको लगे ओके आई कैन डू बेटर.
okay, good that this one he did let me know that aisa nahi aisa, yeah, she did not particularly like this. It's just so harsh. The words are so harsh, and you know, they will not just pull you in it, they will also add your family, your brother, your mother, your father, everything. And it's just that, oh my god, what is wrong with you? Why so much hate? Why so much negativity? I mean, हम किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम पे तो बंद कर दिया था देखना. But it's just that you have to ignore, because you really can't do anything about it, or else you can just switch off the comment section ka thing, you know, so that Exactly. you don't receive any comments. But I let that happen. मैंने comments करने का आपको मौका दिया है, तो वो करेंगे. So In these 15 years of your journey, has there ever been a point where, you know, probably लोगों की तरफ से ये आया कि अरे why are you in this profession, या आप क्यों ये एक्टिंग ही कर रहे हो, या लोगों ने कहीं ना कहीं, you know, even for that matter, close people close to you have probably stopped you from being a part of this profession, या कहीं ना कुछ बोला हुआ ऐसा negative? Has that ever happened? a lot of times, I think this is a very common thing to come Right. to anybody who's doing well. Yeah. You But know? would that affect you personally, या ऐसे कहीं ना कहीं वो लगता था बात, या was there ever a time when you were like, यार मतलब आप उनको मुंह पर नहीं बोलते थे, but mentally probably के, you know, who are you to make this judgment about me, or you know, have an opinion about it types? See, as a person, I am a very straightforward person. I Okay. am very blunt when it comes to any such thing. Okay. Obviously, when I was a child, when I was much younger, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बिकॉज सभी आपसे बड़े होते हैं उस टाइम पर, अगर आपको कोई बोलता है तो. बट कभी ऐसे किसी ने डायरेक्टली बोला नहीं. लेकिन हाँ, ऐसे सोशल मीडिया पर या somebody who you are not meeting in person, ऐसी सारी चीज़ें बोली हैं. काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के दौरान बोला है कि why are you doing this, you know, you can go to the school like other children and just study, Right. and you have time, पूरा लाइफ टाइम है ना ये सब काम करने के लिए, ये सब तो उनके थ्रू और ये सारी चीज़ें काफ़ी बार हुई हैं. लेकिन डायरेक्टली एज इन पर्सन किसी ने भी या जानने वाले ने मुझे मुंह पर ऐसा कभी भी नहीं बोला है. Okay. और मुझे लगता नहीं है अब कोई ऐसा सामने से जानने वाला है या कोई कुछ बोलेगा. और अगर बोलता भी है, यू नो, आई जस्ट फील देयर इज़ नो पॉइंट इन सुन के ले लो कि अच्छा ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. You have to always stand up for yourself. You have to always you know, speak your heart and your mind. And दूसरे इंसान को नहीं पता है आपकी जर्नी क्या रही है, दूसरे इंसान को Correct. नहीं पता है आप क्या कर रहे हो. उनको ये पता है that you're doing well and you have done well for yourself. बट लोगों की आदत है, वो कुछ ना कुछ टिप्पणी देंगे ही देंगे अपनी, यू नो, विच इज़ ऑल्सो फाइन. ठीक है, दे दो, किसी को आप मना नहीं कर सकते कुछ बोलने से या फिर सोचने से. बट ऐसा अगर कभी भी इन लाइफ कुछ आता है, आई नो हाउ टू पॉजिटिवली हैंडल इट. सो Oh, wow. Also, you recently turned a singer. या What, matlab, how did this come about? Like, was it always a plan that, you know, you wanted to explore this side of the talent as well? Yeah, it just happened sometime out of the blue. Like, Kaifa Haluka का क्या story है? सो सिंगिंग फील्ड में जाने का जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे बहुत सालों पुराना प्लान्ड स्टोरी नहीं है. एज आई ग्रू, मेरा म्यूज़िक का जो शौक़ था वो बढ़ता गया. मुझे गाने सुनना बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद था, तो हर टाइम मेरे कान में ईयरफोन होता था, मैं गाने बहुत सुनती थी. और ऐसे आप घर में भी नहीं हम करते थे हो, गा देते हो, Right. बट आप ऐसे ही कैजुअली गा रहे होते हो. तो वैसे डैडी मम्मी ने मुझे बोला दैट यू सिंग वेल, अच्छी आवाज़ है तुम्हारी. और भी ऐसे नॉर्मली कभी कभी कहीं गाती तो लोगों ने बोला कि अरे गाती हो क्या. तो आई थिंक वहाँ से वो भी डैडी को ही दिमाग में आया. सो डैडी वाज लाइक, जन्नत यू सिंग वेल, व्हाई डोंट यू स्टार्ट सिंगिंग, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग प्रोफेशन. वी हैव सच अमेजिंग ग्रेट सिंगर्स in Right. India who are doing so well for themselves and also for our music industry worldwide, Correct. you know. तो वहीं से आया ये. और कैफ हलूका का कोई अलग स्टोरी नहीं है. इससे पहले मैंने अपना एक सिंगल निकाला था, बाबू शोना मोना, विच वॉज जस्ट द ऑडियो, बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो द रिएक्शन ऑफ हाँ. पीपल एंड लाइक यू नो दैट कितने सारे तरह Right. के आपको वो आते हैं. बट दैट डिड रियली वेल फॉर मी. उसका वीडियो भी नहीं था, वी जस्ट लॉन्च्ड द ऑडियो एंड इट हैज़ ओवर, I don't know, nearly 3 lakh reels on Instagram without the video, and it was on my channel, not any music label. So that's when we were like, okay, now we can try more in this field. उसके बाद कैफ हलूका का idea is again
इट्स लाइक अ टीम वर्क, मतलब ना तो ये अकेला मेरा है ना तो ये अकेला किसी और का है. डैडी और विभास जी जिन्होंने इसका म्यूज़िक किया है, इसका लिरिक्स किया है, कंपोजिशन किया है, वो आए एक दिन कि हम, डैडी ने बोला हुआ था हमें कुछ अलग करना है. Right. जो रेगुलर गाने आ रहे हैं ना, वो हर गाना ना एक ना किसी से सिमिलर ही होता है. उसका कॉन्टेक्स्ट या तो सिमिलर होता है, थोड़े अलग होते हैं, मतलब या तो लव सॉन्ग ही होते हैं या तो सैड सॉन्ग ही होते हैं. हम थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो अलग हम कैसे कर सकते हैं. सो ही केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कैफा हलूका. लाइक व्हाट इज कैफा हलूका? सो ही इज लाइक, ओ दिस इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स हाउ आर यू. सो वी वर लाइक ओके, टेल अस मोर अबाउट इट. तो उन्होंने पहले हमें थोड़ा म्यूज़िक और थोड़ा चंक बना के दिया, एंड वी वर लाइक ओके दिस इज़ रियली नाइस, बिकॉज कैफा हलूका में जो म्यूजिक भी है दैट आल्सो हैज़ दिस अरबिक टच. अगर आपने मेरा पोस्टर देखा होगा तो मेरा लुक आल्सो हैज़ दिस अरबिक टच इन इट. Blue, dark blue velvet something, and the headgear headpiece, and everything with the horse. So you were like this is something different and this is something that I've never really listened here. यहाँ पे कुछ अलग होगा, तो ऐसा कुछ करते हैं कि हम अरबिक पॉप टाइप का करते हैं इसको. तो उसमें जो आप म्यूज़िक भी आप देखेंगे तो सिर्फ अरबिक टच नहीं है उसमें पॉप का भी फील है, और इसका हुक इज़ एन अरबिक. सो ओवरऑल ये हमने प्लान किया, इसको रिकॉर्ड किया, बट रिकॉर्डिंग के बाद डैडी को पसंद नहीं आई मेरी रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने मुझसे री रिकॉर्ड कराया. सो ही वाज लाइक नो, योर इमोशंस आर मिसिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं अपने फर्स्ट रिकॉर्डिंग में इतना नर्वस होती हूँ, और जब ये रिजेक्ट होकर दोबारा से मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं और नर्वस हो गई. बट आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग एंड या वी आर गुड टू गो नाउ. And you know, in the beginning of this conversation, you mentioned that there was, or your parents always gave you an advice कि आप जो भी करते हो सच्चे दिल से करो, and you know, just stay grounded always. Yeah. But was there a particular advice that's come from them that has always stayed with you, or was it the same one? Like in terms of, you know, after you became an actor, was there a particular career advice or you know, एक कोई career tip आपके लिए उन्होंने दी हो, which has always that is something that Jannat always keeps in her mind? आई थिंक दिस इज़ नॉट अ टिप एग्जैक्टली. वैसे तो बहुत सारे एडवाइजेस मिले हैं, बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बट डैडी ने हमेशा ही बोला है कि किसी पोजीशन पर पहुंचना डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार आप जब वहाँ पहुँच गए तो उस पोजीशन को सस्टेन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो आपको लाइफ में मेक श्योर ये करना है कि अगर आप आज यहाँ पर हो तो आपको इससे आगे ही जाना है, इससे पीछे नहीं आना है, या तो उसको सस्टेन करना है. और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए कि बहुत सारे लोग हैं जो एक सर्टन मुकाम पर पहुंच जाते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं, उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं वहाँ पर. और उस चीज़ को सस्टेन करना सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वो आपको मेक श्योर करना है कि वो आप कैसे करोगे, क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपके पीछे मेहनत करके आपको एडवाइजेस देकर आपका काम देख के आपको एक सर्टन लेवल तक पहुँचाऊँ, लेकिन उसको आपको संभालना कैसे है वो आप पर है. Right. So I think this is one thing that one of those most important advices or life lessons he's given to me, and I think it's very true. I have understood. कितने सारे लोग होते हैं जिनको हाइप मिलता है, हम खुद देखते हैं कि अरे आजकल बहुत दिख रहे हैं, एंड देन बूम अब नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए. स्टारडम हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती. Actually, it's a reality I feel. But if Jannat today met the 6-year-old Jannat back from 2010 when she started her journey, what would this Jannat tell that Jannat? Oh my God. Maybe, I don't know, I've never thought about it. I wouldn't change anything firstly. But I can only say that, you know, I'm proud of you and you will be able to make it. Wow. Maybe just tell her that हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता था ना यार कि कैसा होगा, क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा टाइप्स. तो ये बोल दूंगी उसको, दीवाना जिसका ज़माना, जिसकी आंखें पैमाना, उसको है अपना बनाना, जिसने लूटा मेरा दिल. मरहबा मरहबा कैफा हलूका, मरहबा 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 कैफा हलूका, मरहबा. Amazing. Thank you so much for doing this with us, Jannat. And thank you for having me. This was my first podcast. Thank you so much. It was so good to speak to you too. Absolutely. And I can't wait to watch myself in this. Thank you. Thank you. Hi guys, this is Jannat Zubair and you are watching me on Bollywood Bubble.